Uh, we have completed some topics related to the intellectual property right. Okay, we have covered that the various type of the intellectual properties. Okay, like the copyrights, trademark, geographical indications. Okay, and patent also. Okay, so we have know and we have actually discussed about which property rights is considered which type of the intellectual properties. Okay, दैट मीन्स कि अगर कोई लिटरेरी वर्क है फाइन, तो फॉर दैट द कॉपीराइट इज हियर. कॉपीराइट providing the word protection regarding that kind of the literary work, as well as any development of the such computers programs. Okay, and artistic works, all types of the artistic works, like the works in the drama. Okay, works in the filmography. Okay, so these are considered the what, these are considered the कॉपीराइट्स इन द म्यूजिक. मतलब एरिया में आप बात कर लो तो उसमें भी जो भी होता है कॉपीराइट का ही यहाँ पे क्लेम किया जाता है. एंड द कॉपीराइट इज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिगार्डिंग दैट. ओके, एंड वी हैव डिस्कस अबाउट द various treaties and various agreements and the various what conventions regarding that. Okay, we have discussed already about the TRIPS agreement. Okay, after completing the TRIPS agreement, and we know that TRIPS is actually dealing by the WTO. Okay, World Trade Organizations. Okay, and TRIPS full form जैसे कि agreement on the trade related aspects of the intellectual property rights. Okay, so यहाँ पे हमने इस सारी बातें अपना कंप्लीट कर लिया था. एंड आफ्टर दैट वी हैव ऑल्सो कंप्लीटेड द वीपो. ओके, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस. Then Bern Convention. Okay, and Budapest, Paris Convention, Madrid Agreement. Okay, so today we have to discuss the new topic related to the IPR, and this is considered as the various subject matters, various subjects matters. Okay, of IP in India. IP in India. Okay, various subject matters intellectual property in India. Okay, that means in India there is the various issues which are related to the intellectual property and the intellectual property rights both. Fine. दैट मीन्स कि अगर कोई जैसे मैंने आप लोगों ने बहुत सारा ऐसा केसेस देखे होंगे. ओके, एंड स्पेशली इन द केस ऑफ द कॉपीराइट. ओके, so here the proclamation of the copyright is a big issue. Okay, that means कि अगर कोई एक बुक लिखता है, कोई भी ऑथर या राइटर कोई बुक लिखता है, एंड इफ समवन जस्ट ट्राइंग टू क्लेम ऑन दैट बुक, कि वो बोले कि कोई अलग बंदा बोले कि नो दिस इज माय बुक. ओके, तो ऐसे कुछ इश्यूज देखने को मिलेंगे. जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि चेतन भगत ने नॉवेल लिखी. फाइन, और उसके बाद बोला कि ये जो 3 इडियट्स की जो कहानी है, स्टोरी है, ये हमारे नॉवेल से है, लेकिन हमको मतलब कि कॉन्फिडेंस में नहीं ले गया, मुझे बताया नहीं गया है. फाइन, ऐसा कुछ क्लेम किया था. बाद में पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. ठीक है, तो देर आर वेरियस इशूज विच इज़ रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. ओके, तो जैसे हम सबसे पहले बात करें अबाउट कॉपी राइट्स. ओके, कॉपी राइट्स. तो कॉपी राइट्स इज एक्चुअली governed by an act which is passed in the 1957, and this is known as the Copyright Act 1957. Okay, this act is recently amended in the year of the 2012. Okay, and this act is considered under the Copyright Office of the Ministry of Human Resource Development. ठीक है, दैट मीन्स कि आप ऐसे लिख सकते हो कि देयर इज अ law for the copyrights is considered as the what, Copyrights Act 1957, and this act was recently amended in 2012.
Okay, and which ministry is responsible for this? Ministry responsible for the copyright protection is considered as the HRD ministry. MHRD, Ministry of Human Resource Development. And under this, here is a copyright office. Copyright office जो क्या करता है, गवर्न करता है कॉपीराइट्स को. ओके, पूरा इसका फॉलोअप जो लेता है वो कौन लेता है? ये कॉपीराइट लेता है, सॉरी कॉपीराइट ऑफिस लेता है. फाइन, ओके. और क्या दिया गया है कि अंडर द दिस कॉपीराइट एक्ट, ओके, द कॉपीराइट एक्ट इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग द राइट्स विच इज गिवन बाय द लॉ. ठीक है, एंड फॉर व्हाट? और आपको पता है, फॉर लिटरेरी एंड artistic works. Clear? For literary and the artistic works. So in this case, the dramatic, musical and the other producers of the cinematographic films and the sound recordings, ठीक है, all are the things are considered under this literary and the artistic works. All are considered actually under the artistic works. Okay, and literary like the what? Like the novel writing, okay, any book writing, any poetry writing, prose writing, fine. So these are considered under the what? Novel. Clear? अगर कुछ उसमें किया जाएगा तो वो लिटरेरी वर्क मतलब अंडर में कंसिडर किए जाएंगे. फाइन. तो हियर इज सम इश्यूज आर हियर, लाइक जैसे कि अगर कोई बात करे लाइक द इन द कॉपीराइट्स द कंप्यूटर प्रोग्राम्स, okay, as well as like the software development, ठीक है, ये सब सारी चीजें इसी के अंडर में कंसीडर की जाएंगी. फाइन, अंडर द कॉपीराइट्स. क्लियर? ओके. अच्छा, वन मोर थिंग इज हियर. एक्चुअली दिस कॉपीराइट एक्ट is providing a provision. ठीक है, and what is the provision? Suppose करो कि जैसे in case of the like international copyright की बात करें अगर हम, fine, so there are many countries which is considered under the international copyright. Okay, अच्छा, International Copyright Act is another thing and the Copyright Act 1957, ठीक है, and in reference of the India is the another thing. But this act is giving a provision, and provision is what? ये provision ये बोलता है कि if anyone, ठीक है, doing his artistic works as well as the literary works inside the India, ठीक है, from another country, suppose करो किसी दूसरी कंट्री का कोई सिटीजन है, क्लियर, एंड इफ he is doing the artistic or any literary types of the work in the India, then this Copyright Act 1957, ठीक है, will provide the protection to that person. क्लियर है? दैट मीन्स कि इंटरनेशनली अगर वो मतलब कंट्री है जो कि इंटरनेशनली कॉपीराइट एक्ट को एक्सेप्ट करता है, फाइन, तो इन दैट केस पर्सन फ्रॉम दैट कंट्री इज डूइंग इट्स work inside the India, then Copyright Act 1957 of India will provide the protection to him. बात समझ में आई? दैट मीन्स कि अगर कोई भी काम करता है तो वो उसको क्या करेगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा. ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि द टर्म ऑफ कॉपीराइट इन वर्क शैल नॉट एक्सीड दैट विच इज एंजॉयड बाय इट इन इट्स कंट्री ऑफ ओरिजिन. ओके, बोल रहा है कि जो कंट्री ऑफ ओरिजिन में जो उसको जितना टर्म मिला है, ठीक है, कितना इसको कॉपीराइट है, उतना ही उससे मतलब उतना ही टर्म यहाँ पे भी उसको मिलेगा, एंड इट विल नॉट एंजॉय द एक्सीड टर्म. ठीक है, बहुत ज़्यादा उससे ज़्यादा मतलब उसको नहीं दिया जाएगा कि मान लो वहाँ 5 साल के लिए मिला था तो यहाँ भी क्या है कि उतने ही साल के लिए मिलेगा. क्लियर? ओके. हियर इज द सॉफ्टवेयर कॉपीराइट इश्यूज, सम इश्यूज रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर कॉपीराइट. देखते हैं क्या है इसमें सॉफ्टवेयर कॉपीराइट में.
एक्चुअली ऐसा है ना कि जैसे सपोज दैट कि इफ मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. सपोज दैट इफ देयर इज द माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, एम एस ऑफिस, ओके, लाइक द एम एस एक्सेल. So MS Excel, the developer of the MS Excel is actually proclaimed for the what? उसने क्लेम कर रखा है किस चीज़ के लिए, कॉपीराइट के लिए. बट हियर इज एनी वन, एनी अनदर पर्सन, ठीक है, इज डूइंग एनी, आप कह सकते हो कि इंटेलेक्चुअल वर्क्स ऑन द MS ऑफिस. ओके, तो वो बोलेगा कि हमको इस चीज़ के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे कॉपीराइट चाहिए. क्लियर? अंडर द MS ऑफिस उसने किया है और MS ऑफिस का कोई और कॉपीराइट का मतलब पहले से ले रखा है, तो उस केस में थोड़ा सा इश्यूज हो सकता है ना, कि जैसे उसने बोले कि नहीं कॉपीराइट का इश्यूज तो हमारे पास है, ठीक, और वो बंदा बोले कि नहीं मैंने पर्टिकुलर चीज़ इस पर डेवलप की है तो उसका कॉपीराइट मुझे मिलना चाहिए. तो थोड़ा सा इस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे इश्यूज देखे जाते हैं. ठीक है, चलो देखते हैं क्या है. तो सॉफ्टवेयर कॉपीराइट इश्यूज. सॉफ्टवेयर कॉपीराइट्स इशू. क्लियर? ओके. बोल रहे हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम कैन ऑल्सो रजिस्टर एज अ लिटरेरी वर्क, ओके, एज पर कॉपीराइट एक्ट 1957. ठीक है, दैट मीन दिस इज कंसिडर एज द लिटरेरी वर्क. ठीक है, एज पर कॉपीराइट्स एक्ट 1957. क्लियर? दैट मीन्स कि लिटरेरी वर्क इंक्लूड द कंप्यूटर प्रोग्राम ऑल्सो. ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स लाइक द लाइक टेबल्स, ठीक है, एंड कंपाइलेशन इंक्लूडिंग द कंप्यूटर डेटाबेस सोर्स कोड, ओके, हैज ऑल्सो बी सप्लाइड along with the application of the registration of the copyright for software product. ठीक है, तो मतलब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए कोई भी अगर रजिस्ट्रेशन भी अपना कराना चाहता है, दैट मीन्स कि सपोज दैट ही इज एक्चुअली डेवलप द सम स्पेशल टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर उसने डेवलप किया है तो ही कैन एबल टू टेक द कॉपीराइट्स. ठीक है, रिगार्डिंग दैट, ओके, वो कॉपीराइट्स ले सकता है. फाइन. तो इन द ईयर ऑफ बाय द ईयर ऑफ द 2012 अमेंडमेंट्स इन दिस कॉपीराइट्स एक्ट 1957, इसने क्या किया ना कि ये जो अमेंडमेंट था, ठीक है, इट मेक एक्चुअली द इंडियन कॉपीराइट लॉ compliant with the internal treaties, internet treaties, compliant with the internet treaties. That means the World Intellectual Property Organization and the WIPO performance, ठीक है, एंड फोनोग्राम्स ट्रीटी ऑल्सो. दैट मीन्स इसने क्या किया ना कि बहुत सारी जो इंटरनेट ट्रीटीज थी, ठीक है, उसको क्या किया बिल्कुल उसके साथ में द इंडियन कॉपीराइट लॉ जो हमारा बना, ठीक है, उन दोनों का कंप्लायंस साथ में ले आया उन दोनों को. ठीक है, एंड अंडर दिस द वर्क परफॉर्म्ड अंडर द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो. ओके, तो उसमें जो भी चीज़ें परफॉर्म की जाएंगी वो भी इस after this treaty, after this amendment, that would be also considered under the Copyright Acts 1957. Okay, so here is बहुत सारे उसमें क्या बनाए गए after 2012 amendment. Clear? After 2012 amendment, तो बहुत सारे यहाँ पे कैटेगरी बनाई गई. लाइक द कैटेगरी इसमें डिफाइन किया गया, लाइक द लिटरेरी, विच वर्क इज कंसिडर अंडर लिटरेरी. ओके, इन द लिटरेरी द लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर, इसमें बोला गया कि लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 ईयर्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर इन विच द ऑथर डाइज. ओके, देखो इसमें जैसे ये बोला गया कि लाइफ टाइम के लिए मिलेगा. जैसे सपोज करो कि ऑथर है, ठीक है, बुक का ऑथर है, किसका, बुक का. ही actually wrote a book in the year in the age of, suppose that कि in the age of 50 years. ठीक है, 50 years. अब 50 years में इसने बुक लिखा, ठीक है, इसको कॉपीराइट मिला एट द एज ऑफ 50 years. ओके, तो जो कॉपीराइट मिलेगा ये इसकी 50 years से स्टार्ट होगा. क्लियर? एंड कहाँ चलेगा, टिल द डेड. अब सुनो, आप टिल द डेड.
अब सपोज करो कि यहां से ये इसको बोला टिल द डेट के लिए लाइफ टाइम मिलेगा इसको, फाइन. सपोज दैट 50 years ही लॉन्च हिज बुक, ओके, एंड आफ्टर 30 years, suppose that after 30 years in the at the age of 80, ठीक है, he dies. ठीक है, he dies. अब उसको बोल रहे हैं कि अगर उसका 80 years जो है वो 2022 में पूरा हो रहा है, ठीक, जैसे सपोज करो 80 साल में वो एक्सपायर कर गया, डेथ कर गया बाय द अप्रैल, ठीक है, अप्रैल में उसकी डेथ हो जाती है 2000, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अप्रैल 2022 में उसकी डेथ हो गई, फाइन. तो ईयर क्या है 2022. अब इसको इसका जो मिलेगा आगे का जो मिलेगा ना, ये इसके 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी, 1 जैन, मतलब स्टार्टिंग से 22 टू 60 years के लिए मिलेगा. फिर आगे इसको 60 years तक इसका कॉपीराइट रहेगा इस पर, ठीक है, 60 years तक. दैट मीन्स ये जाएगा अप्रॉक्स 2082. आई बात समझ में? दैट मीन्स कि लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस 60 years फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर, दैट मीन्स कि अगर 22 से स्टार्ट हो तो 1 जैन से स्टार्ट होता है ना कैलेंडर ईयर, ओके, कैलेंडर ईयर इन विच द ऑथर डाइज, जिस ईयर में वो मतलब उसकी डेथ हो गई हो. क्लियर? ओके. इट विल ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द ड्रामेटिक, ठीक है, ये बोल रहा है कि अमेंडमेंट के बाद से लिटरेरी, ड्रामेटिक, क्लियर, फॉर द ड्रामेटिक वर्क्स, ओके, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क ऑल्सो, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क, ठीक है. फॉन्ट साइज ओके है ना, फॉन्ट साइज ठीक है. म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क, ओके. cinematograph films also consider, cinematography के लिए बोल सकते हो आप, फॉर द cinematography, ओके. posthumous वर्क के लिए भी, posthumous वर्क, ओके. पब्लिक अंडरटेकिंग, इंटरनेशनल एजेंसीज, ठीक है, फोटोग्राफ्स, गवर्नमेंट वर्क, साउंड रिकॉर्ड्स, ओके. So these are the category which is considered under the Copyrights Act 1957 after the amendments in the year of the 2012. Okay. ये issues थे कुछ related. These issues are related to the copyrights. Clear? Now थोड़ा सा हम बात करते हैं the issues which are related to the patent, ठीक है, in India. ठीक है. पेटेंट, ओके. अगर हम इसमें बात करें कि व्हाट द पेटेंट, तो अगर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन पेटेंट सिस्टम, ओके, कि व्हाट टाइम द क्या बोल सकते हो उसको आप, द आइडिया ऑफ द पेटेंट एक्चुअली बिगिंस, ओके, और क्रिएटेड, फाइन. तो बाय द ईयर ऑफ द 1856, द ईयर ऑफ द 1856, there is the Act 6 of the 1856 on the protection of invention based on the British Patent Law of 1852. इन्होंने ये बोला कि by the year of the 1856 India actually firstly the introduce their what, their law for the protection of the inventions, ठीक है, and this was according to the British law, ठीक है, British Patent Law 1852. तो जो बिगिनिंग है ब्रिटिश पेटेंट लॉ 1852, what is this actually? This is the history of patent system in India, okay, history of patent system in India. So by the year of 1856 the India actually first time the talk about the protection of the inventions, ठीक है,
कि अगर कोई किसी चीज़ का इन्वेंशन करता है तो उसको उसके प्रोटेक्शन की नीड है। क्लियर? और बड़ा इसका सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। फाइन, ऐसे बात नहीं की जाती है कि किसी को भी पेटेंट दे दिया जाए। क्लियर? ओके। बाय द एंड इन्होंने बताया कि सर्टेन एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस ग्रांटेड टू इन्वेंटर्स ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 14 ईयर्स। ठीक है, उसमें बोले कि कुछ 14 ईयर्स के लिए जो भी इन्वेंटर होगा, ठीक है, मैन्युफैक्चरर होगा, उसको कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिए गए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस ब्रिटिश पेटेंट लॉ, ठीक है, 1852। तो बाय द ईयर ऑफ 1859, the next was 1859. Here is the act modified as Act 15, patent monopolies called the exclusive privileges. ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे वो जो एक्सक्लूसिव प्रिविलेज की बात की जा रही थी ना, तो बाय द 1859 दिस इज हैपनिंग एंड दे हैव क्रिएटेड द एक्ट 15 फॉर exclusive privileges. Exclusive privileges. Okay, that means यहाँ पे अगर हम बात करें like the making, selling and the using inventions in India and authorizing others to do so for 14 years from the date of filing. Okay, that means कुछ भी चीज़ें वहाँ पे उसको बेचना है, इंडिया में बेचना है, ठीक है, या कोई और उसके बिहाफ पे ये चीज़ करे, वो किसी को ये चीज़ प्रोवाइड करा दे, ठीक, 14 ईयर्स के लिए। ओके, तो दिस इज एक्ट 15 विच इज़ हियर फॉर द एक्सक्लूसिव टाइप्स ऑफ द प्रिविलेज। उसका अलग प्रोविज़न किया गया था कि उसको क्या से क्या करना पड़ेगा। ओके, बाय द ईयर ऑफ 1872, ठीक है, 1872 इज हियर द पैटर्न एंड डिज़ाइन प्रोटेक्शन एक्ट। द फर्स्ट एक्ट, द पैटर्न एंड डिज़ाइन प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, फर्स्ट टाइम in the year of 1872 the pattern and design protection act was passed. ठीक है, and this act was actually providing the protection regarding the what are the design of the new inventions, okay, and which kind of the pattern are used for the development of that particular specific design. ठीक है, so regarding that this is the pattern and the design protection act 1872. By the year of 1883, ठीक है, 1883, here is the Protection of Inventions Act. Protection of Inventions Act 1883. Okay, then in the year of 1888, 1888, here is the consolidated as the Invention and Design Act. Consolidating as the invention ठीक है, and design act. Clear? Then 1991, here is the Indian Patents and Design Act. The Indian Patents and Design Act. Okay. देखो, by this year the first time India is talking about the patent. Okay, ठीक है, and passed an act which is known as the Indian Patents and Design Act. Okay, and by the year of the 1999, ठीक है, 1999, here is another act, the Patent Amendment Act 1999. Patent Amendment Act 1999. ओके, एंड दो यहाँ पे एक एक्ट और आएंगे
in the year of 2002. ठीक है, 2002 is providing the Patent Act 2002, इसी का amendment है, nothing else. ठीक है, again amendment, and by the year of 2005 again the Patents Amendment Act. Clear? So like this is the historical development, okay, of the Patent Act in the India, okay, and by this provisions which is giving in the Patents Amendment Act in the year of 2005, ठीक है, and which is effective from the 1st January 2005, ठीक है. तो 1 जनवरी 2005 से जो अमेंडमेंट हुआ पेटेंट एक्ट में, ठीक है, it is providing the provisions regarding the protection of the protection of the patents. That means this is the intellectual property rights for the new inventions, okay, new inventions or new design development, ठीक है, new pattern of the design, okay. तो जो 1970 का जो हमारा पेटेंट एक्ट था, ठीक है, द लॉ जो अभी हमें फॉलो करते हैं, ठीक है, वो लॉज हैं लाइक विच लॉ? The law is considered the Patents Act 1970. Law is here. Patents Act 1970. Okay. And this is amended in the 2006. And the amendment in 2006 under the Ministry of which ministry is here? Under the Ministry of Commerce and Industry. Ministry of Commerce, ठीक है, एंड इंडस्ट्री ऐसे लिख लो यार, शॉर्ट में मत लिखो. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. क्लियर? एंड अंडर दिस मिनिस्ट्री there is a department which is considered as the DIP. Which department? Department is considered as the DIPP. Okay, this is here. DIP is stand for the Department for the Promotion of Industry. Department for the promotion of industry and internal trade. Okay, and internal trade. Clear? So here is the main object of this patent law is to encourage the scientific research, obviously बात है, new technology and the industrial progress. Okay, this law is actually providing the security and the protection regarding the new inventions, ठीक है, new scientific inventions, new technology and the new industrial new industrial progress actually. Okay, the protection of the intellectual properties, okay, is very necessary for the economic benefits of the country. Okay, क्यों? क्योंकि अच्छा economic साथ साथ social also. So we can say that these are very necessary for the socio-economic benefits of India. ठीक है? How? If anyone is here which is claiming for a patent, for his new technology development या new developed technology, ठीक है, invention of the new technology. तो अगर हम उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, तो वो आगे चल करके फिर और इस स्कोप में काम करने के लिए क्या रहेगा, इंटरेस्टेड होगा. अगर उसको रिवार्ड नहीं किया जाएगा, क्लियर, उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, तो इससे क्या होगा कि उसका मोरल डाउन होगा, राइट.
और वो फिर आगे फर्दर ऐसे टाइप्स के इन्वेंशंस नहीं करेगा. फाइन. तो इसलिए IPR इज़ वेरी नेसेसरी. ओके. एंड the price of the grant of the monopoly is the disclosure of the invention at the patent office, which after the expiry of the fixed period 20 years of the monopoly passes into the public domain. That means कि इन्होंने ये बोला है कि if anyone is actually claiming for the patent, okay, so here is the office of patent is here, which is considered at the patent office. ठीक है. पेटेंट ऑफिस में वो क्या करेगा, क्लेम करेगा. एंड दिस इज प्रोवाइडिंग द 20 ईयर्स मोनोपोली. 20 साल के लिए उसको मोनोपोली दे देगा कि हाँ यू आर द वन, ठीक है, विच हैव द ओनरशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्वेंशन, न्यू इन्वेंशन. एंड आफ्टर द 20 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 20 ईयर्स, ठीक है, इट विल बी अलाउ फॉर द पब्लिक डोमेन. तो इसको फिर क्या कर दिया जाएगा, पब्लिक डोमेन में दे दिया जाएगा. क्लियर. इसको पेटेंट सॉरी जो भी नया इन्वेंशन है उसको सारा पब्लिक डोमेन में क्या कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा. ओके. द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पेटेंट लॉ इज दैट अ पेटेंट इज ग्रांटेड ओनली फॉर एन इन्वेंशन विच मस्ट हैव नोवेल्टी and the utility. Okay, it is essential for the validity of a patent that it must be the inventor's discovery as opposed to mere verification of what was already known before the date of the patent. ये बोल रहे हैं कि जो भी पेटेंट बनेगा, क्लियर, इफ anyone is here which is who is actually claiming for the patent, ठीक, तो वो पेटेंट जो है ना उसका जब जिस दिन वो जाएगा वो कराने ना, पेटेंट कराने जा रहा है पेटेंट ऑफिस, टिल दैट डेट, ओके, इट मस्ट बी दैट द पैटर्न इज वेरी न्यू. ठीक है, और किसी भी पुराने पैटर्न से या किसी पुराने इन्वेंशन से वो मैच नहीं होना चाहिए. ठीक है, तभी उसको पेटेंट मिलेगा. दैट मीन्स कि एकदम बिल्कुल बोला जाए तो क्या बोला जाए, एकदम विशुद्ध उसका आविष्कार होना चाहिए. ठीक है, दैट मीन्स बिल्कुल प्योर इन्वेंशन होना चाहिए. तो पेटेंटेबल इन्वेंशन अपार्ट फ्रॉम बीइंग न्यू मैन्युफैक्चरर मस्ट ऑल्सो बी यूजफुल. ठीक है, और ऐसा नहीं कि किसी काम का नहीं है ज़बरदस्ती पहुंच गया, यूजफुल होना चाहिए. जो भी उसका मैन्युफैक्चरर है, जो उसको डेवलप कर रहा है, तो वो जो भी डेवलप कर रहा है वो कैसा होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए. क्लियर. ओके. एवरग्रीनिंग ऑफ द पेटेंट इज नॉट अलाउड. ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, एवरग्रीनिंग पेटेंट. एवरग्रीनिंग पेटेंट इज नॉट अलाउड. ठीक है, पहले तो आप ये समझो कि ये एवरग्रीनिंग पेटेंट का मतलब क्या होता है. क्लियर. बोलना टू बी पेटेंटेबल एंड इम्प्रूवमेंट ऑन समथिंग नोन बिफोर. ठीक है, अगर कोई ऐसा इम्प्रूवमेंट है जो पहले से ही नोन है, ओके, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मैटर्स ऑलरेडी नोन. ठीक, दैट मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग अ डिफरेंट थिंग बट दिस डिफरेंट मैटर इज ऑलरेडी नोन. ठीक है, बाय द पब्लिक जो भी है देश दुनिया के द्वारा. क्लियर. शुड बी समथिंग मोर देन a mere workshop improvement and must independently satisfy the test of an invention or an inventive step. It must produce a new result. ठीक है, एक नया रिजल्ट उससे प्रोड्यूस होना चाहिए, और a new article or a better or cheaper article than before. Okay, that means if you आपने क्या किया कि कोई एक नया इन्वेंशन किया, जैसे आप सपोज करो कि यहाँ पे आज की बात एक नया टेक्नोलॉजी आया है which is known as the proton therapy. Proton therapy is actually, ठीक है, actually using for the what, cancer treatment. Okay, and proton therapy is what, this is a kind of the radiotherapy है ना. ये radiotherapy, why this is radiotherapy, proton is a radiation. ठीक है, प्रोटॉन किस फॉर्म में निकलेगा, एक रेडिएशन, एक वेव के फॉर्म में निकलेगा. क्लियर.
ओके, अब और पहले से रेडियोथेरेपी अवेलेबल है, अवेलेबल बिफोर, ठीक है, नोन, और सभी जानते हैं रेडियोथेरेपी। ओके, इफ द सेम रिजल्ट ऑफ द प्रोटॉन थेरेपी इज हैपनिंग, ठीक है, इज सेम जस्ट इन द रेडियोथेरेपी, ठीक है, सो इन दैट केस, ठीक है, द पेटेंट वुड नॉट गिवन टू द मैन्युफैक्चरर और इन्वेंटर। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर एक ही जैसा रिजल्ट मिल रहा है, सेम रिजल्ट मिल रहा है, ठीक, एटलीस्ट रिजल्ट मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट, और डिफरेंट में ये नहीं कि उससे कम हो, ठीक है, इट वुड बी बेटर एंड चीपर ऑल्सो। दैट मीन्स चीपर, दैट मीन्स कि अगर इफ एनी patient is here which is who is going actually for the treatment of the cancer by the radiotherapy, and he is giving the almost 5 lakh, 5 lakh, okay, and for the proton therapy he is giving the 5 lakh, same, okay, and the result are also same, this is same, this is same, तो ना तो ये इससे सस्ता पड़ रहा है, चीपर हो रहा है, ना तो इससे बेटर रिजल्ट दे रहा है, तो ऑन विच बेस, ठीक है, ऑन विच बेसिस द पेटेंट इज प्रोवाइडिंग फॉर दिस इन्वेंशन, ठीक, इनसे बोला जा रहा है कि जो भी पहले से नोन जितने भी उसके रिगार्डिंग जो हो चुके हैं इन्वेंशन नोन हो, ठीक है, उनसे बेटर रिजल्ट होना चाहिए, क्लियर, और उनसे क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। ओके, द न्यू सब्जेक्ट मैटर मस्ट इन्वॉल्व इन्वेंशन ओवर व्हाट इज ओल्ड, ठीक है, दैट मीन बोलना चाहिए इसमें ये जो इन्वेंशन वर्ड है ना, ठीक है, वो बिल्कुल बताना चाहिए कि दिस इज इन्वेंशन और दैट वाज ओल्ड, ठीक है, जो पुराना था उसको भूल जाओ, दिस इज इन्वेंशन, दैट मीन्स दिस इज द न्यू डेवलपमेंट और न्यू इन्वेंशन, एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ न्यू इन्वेंशन, क्लियर। ओके, तो एवरग्रीनिंग इज अ टर्म कॉमनली यूज्ड इन द पेटेंट पार्लांस, ठीक है, and is essentially means the filing patent using a strategy which can increase the patent protection beyond the normal term. Okay, in pharma world, since patents are highly important to protect, you can see many examples where companies have staged the patent exclusively to way beyond 20 years using clever patent filing strategies. अच्छा, इन्होंने बोला कि जो भी पेटेंट फिल करने की स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है, तो उस पेटेंट उस स्ट्रैटेजी को क्लेवरली क्या कर लिया जाता है, बहुत ही क्या बोला जाता है, स्मार्टली, है ना, स्मार्टली उसको उसकी फॉर्म फिलिंग की जाती है, जिससे क्या हो सकता है कि एक बार 20 ईयर्स के लिए पेटेंट को बढ़वा लिया जाता है, क्लियर। तो फार्मा इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल देखने को मिलते हैं, और इफ़ एनी फार्मा इंडस्ट्री हैव एक्चुअली डेवलप्ड अ न्यू मॉलिक्यूल ऑफ द ड्रग्स और मेडिसिन, ठीक है, तो इन दैट केस वो ऐसा करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो दिस इज कॉलिंग द वर्ड, दिस इज कॉलिंग द एवरग्रीनिंग। ओके, इट अलाउज कंपलसरी लाइसेंसिंग, पहला तो ये बोला कि एवरग्रीनिंग इज नॉट अलाउड, ठीक है, और सेकंड जो है, जो पेटेंट एक्ट बोलता है, ठीक है, इट अलाउज कंपलसरी लाइसेंसिंग, ओके, अलाउज द कंपलसरी लाइसेंसिंग, ठीक, compulsory licensing, this strike a balance between two objectives. Okay, the first is the rewarding the patentees for innovation and to make sure that patented product, particularly pharmaceutical ones, are available to the public in developing and underdeveloped countries at affordable price, ठीक है, देखो बोल रहे हैं कि जो कंपलसरी लाइसेंसिंग है, ठीक है, इट मस्ट बी, ठीक है, फॉर द सम एरियाज लाइक द स्पेशली फार्मास्यूटिकल वंस, ठीक है, तो अगर किसी को पेटेंट लेना है, ठीक, तो उसके पास कंपलसरी लाइसेंस होना चाहिए फॉर द पर्टिकुलर फॉर द इनोवेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग्स, ठीक है, अगर वो लाइसेंस नहीं है तो ही विल नॉट एबल टू क्लेम फॉर द पेटेंट, क्लियर। ओके, इट अलाउ बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस पेटेंट्स, ठीक है,
it allows both process and product patent patents. Okay, that means कि प्रोसेस और प्रोडक्ट जो भी है इन दोनों की चीज़ के लिए ये पेटेंट अलाउ करता है. ठीक है, कि पेटेंट होना ही होना चाहिए. सपोज कि इफ एनी वन हैव डेवलप्ड अ न्यू ड्रग मॉलिक्यूल बाय यूजिंग अ न्यू प्रोसेस. ओके, बाय यूजिंग द न्यू प्रोसेस, दैट मीन्स न्यू ड्रग मॉलिक्यूल इज हियर. इसका मतलब द फर्स्ट पेटेंट इज हियर फॉर द प्रोडक्ट, कि उसने ये प्रोडक्ट डेवलप किया. एंड थ्रू विच प्रोसेस द न्यू मॉलिक्यूल इज बीइंग डेवलप्ड. ठीक है, वो जो नया डेवलप किया जा रहा है कॉन्टिन्यूसली, वो एक नए प्रोसेस के थ्रू किया जा रहा है. व्हाट इज द प्रोसेस इज दैट. ओके, इफ द प्रोसेस इज वेरी न्यू, तो द पेटेंट विल बी ऑल्सो गिवन फॉर द प्रोसेस एज वेल. आई बात समझ में, कि प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू बन रहा है और जो बन रहा है, उन दोनों के लिए क्या, it will provide the system for the patent. Okay, the system of pre-grant and post-grant opposition, that means introduction in the 2005, ensures that only deserving patents are granted. ठीक है, it is now possible to object both before and after the patent has been granted. ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि जो डिज़र्विंग हमारा वो है पेटेंट है, ठीक है, उसको इंश्योर करना और उसी को ग्रांट करना. ठीक है, और ये हो सकता है कि जैसे पेटेंट अगर किसी को ग्रांट किया जा रहा है, ठीक है, तो उसके पहले भी ये चीज़ किया जाता है और बाद में भी किया जा सकता है. इफ सपोज दैट इफ एनी टाइप ऑफ द मिस हैपनिंग इज फाउंड, ठीक है, कुछ मिस चीटिंग आपका मिसलीडिंग इज फाउंड एक्चुअली, तो उस केस में क्या होगा कि पेटेंट को अबॉलिश भी किया जा सकता है. ठीक है, तो इट इज़ वेरी कंपल्सरी फॉर द पेटेंट ऑफिस. ठीक है, इट इज़ वेरी कंपल्सरी पॉइंट फॉर द पेटेंट ऑफिस टू इंश्योर द डिजर्विंग पेटेंट. ठीक है, एक बार पेटेंट दे दिया ना, तो दोबारा अगर कोई क्लेम कर रहा है तो उसका फिर से रीचेक होगा कि जो क्लेम कर रहा है देयर इज एनी पॉसिबिलिटी दैट द न्यू पर्सन विच इज हु इज क्लेमिंग ही इज द एक्चुअल इन्वेंटर, और यू कैन से हु इज द एक्चुअल मैन्युफैक्चरर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, ये चीज़ भी किया जाता है अंडर दिस पेटेंट एक्ट. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन. नेक्स्ट इज द ट्रेडमार्क्स. Trademark. Okay, the trademarks, the law is here. Law is here. Trademark Act 1999. ठीक है, 1999 under the Ministry of Commerce and Industry. Okay, and here is also Department for the Promotion of Industry and the Internal Trade. Okay, okay. Well, the trademark is the trademark is typically a name, word, phrase, logo, symbol, design, image or combination of these elements. ठीक है, सपोज दैट कि जैसे अगर कोई टाटा है, टाटा, तो टाटा का जो ट्रेडमार्क है, ओके, वो क्या है, ऐसे जो टी बना हुआ होता है ना, टाटा मोटर्स. ठीक है, उसका जो टी होता है ना, टी, तो दिस इज द व्हाट, दिस इज द ट्रेडमार्क एक्चुअली.
trademark of Tata. So no one can copy this trademark. Okay. अब बहुत सारे ऐसे जैसे सैमसंग का ट्रेडमार्क अपना होता है, क्लियर। एप्पल का ट्रेडमार्क जैसे वो क्या, कट कट टेप एप्पल, ओके। तो एप्पल का ट्रेडमार्क वो है, फाइन। तो दिस इज ट्रेडमार्क इज टिपिकली इज कंसिडर एज द व्हाट, एज अ नेम, नेम भी हो सकता है, as a in the form of what, form of the word phrases, okay, any special logo, any special symbol, okay, any special punchline, sentences, okay. So these are considered as the what, these are considered in under the trademarks, okay. And here there is also a range of non-conventional trademarks comprising marks which do not fall into these standard categories, such as those based on color, smell, or sound, like the jingles. Okay, jingles fingers क्या होते हैं? What are the jingles? Jingles mean that कि अब कोई मतलब कि सपोज करो कि कोई ऐसे कुछ ऐसे गाने बनाता है, ठीक, और सेम पैटर्न को फॉलो करता है, जैसे घड़ी का होता है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ठीक है। तो क्या है ये एक तरीके का क्या है, जिंगल है। ऐसा चुपती जलती गर्मी का मौसम आया, है ना, ऐसा किसका वो डर्मिकूल पाउडर का, फाइन। तो दिस इज कंसिडर द जिंगल और पिंगल, ओके। तो ये इस टाइप के जो जिंगल एंड पिंगल्स होते हैं, ठीक है, दे डू नॉट फॉल इनटू दिस स्टैंडर्ड कैटेगरी, ठीक है। दे आर नॉट कंसिडर एज द ट्रेडमार्क, ओके, ये कोई ट्रेडमार्क नहीं है, फाइन, ओके। तो अ ट्रेडमार्क कैन नॉट बी ऑफेंसिव, बोलना है कि कोई मतलब अगर ट्रेडमार्क है तो इट कैन नॉट बी ऑफेंसिव, ठीक है, ये ऑफेंसिव नहीं होते, फाइन। तो इंडिया ज्वाइंस द मैड्रिड प्रोटोकॉल बाय द ईयर ऑफ 2013, ठीक है। द मैड्रिड सिस्टम फॉर द इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ द मार्क्स offers the trademarks owner a cost effective, user friendly, and the streamlined means of the protecting and managing their trademark portfolio internationally. So by the year of 2013 actually the India joined the Madrid protocol, okay. And this Madrid protocol is responsible for the trademark, ठीक है, protection internationally, okay. That means कि it is providing actually the owners, trademarks owners, a cost effective, user friendly, ठीक है, and the streamlined means of protecting and managing their trademark portfolio internationally, ठीक है। So India is also a member of the what, Madrid protocol, ठीक है, and since year of the 2013, fine, okay. So चलो देखते हैं, द नेक्स्ट वन इज द डिजाइन, okay. The next one is the design, and here the Design Act law is here, law, Design Act 2000, ठीक है, Design Act 2000, and the ministry is same, the Ministry of Commerce and Industry, ठीक है, and the department is here, which is considered the Department of Promotion of what, Industry and the internal trade, ठीक है, DIPP, DIP, okay. So industrial design refers to a creative activity which result in the ornamental or formal appearance of product, and design rights refer to a novel or the original design that is accorded to the proprietor of a validity registered design, ठीक है। So industrial design as an element of the intellectual property. Apple iPhones are manufacturing in China, but China can capture paltry 2 to 5% of its value, while an overwhelming part is cornered by the USA, ठीक है। बोल रहे हैं कि what is the design, actually design is
design is considered that the what creative activity which result in the ornamental or formal appearance of a product. ठीक है, एक प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर अपीयरेंस, दैट मीन्स कि अगर एप्पल है, ठीक, तो एप्पल जैसे अभी इसमें एग्जांपल दिया गया, एप्पल है, आईफोन है, ठीक, तो उस आईफोन का जो भी डिज़ाइन होगा, ठीक है, जो भी डिज़ाइन होगा वो उसी उस मतलब सॉरी उसका क्रेडिट जो होगा वो पर्टिकुलर दैट कंपनी को ही जाएगा. ओके, सपोज दैट जैसे ये बता रहे हैं कि एप्पल आईफोन्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, ठीक है, बट चाइना कैन कैप्चर पार्टी 2 to 5% ऑफ इट्स वैल्यू. ठीक है, 2 से 5% इसको कैप्चर कर सकता है वैल्यू को, वाइल एन ओवरवेलमिंग पार्ट इज कॉर्नर्ड बाय द यूएसए. लेकिन बहुत बहुत बड़ा उसका जो पार्ट है वो उसको किसके द्वारा कवर किया जाता है? यूएसए. वाई? बिकॉज द यूएसए इज द नेटिव कंट्री ऑफ दैट iPhone company. Okay, this is mainly attributed to value added by designing and research which is based in the USA. Thus the importance of design protection cannot be overstressed. ठीक है, बहुत बड़ा इशू नहीं है डिज़ाइन प्रोटेक्शन करना. ठीक है, आपने देखा ना कि चाइना का फ़ोन जब आता है बहुत सारे ऐसे एकदम एप्पल फ़ोन को बिल्कुल आईफोन को वो क्या चाइनीज़ फ़ोन बना करके बेच देते. ठीक है, मतलब चाइनीज़ फ़ोन को ही एप्पल फ़ोन बना देते. बहुत सारा उस केस में देखो धांधली भी हुई ना. अभी जो क्या है OLX वगैरह, राइट, तो जहाँ पे एक ई मार्केटिंग वाला प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होता है. ठीक, उसमें क्या होता है ना कि बहुत ओल्ड फ़ोन वगैरह लोग एक्सचेंज करते रहते हैं. क्लियर? तो ओल्ड फ़ोन एक्सचेंज करते हैं तो क्या करते हैं कि फ़ोन किया, हाँ भाई कितने का है, तो बोला उसने 25,000. ठीक है, उससे जाके मिले, और जिसको नॉलेज नहीं है ना तो वो बोलेगा कि दिस इज़ iPhone 11, और वो पकड़ाया गया उसको चाइना का माल. ठीक है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा. तो कंक्लूजन सिर्फ इतना निकल के आता है कि वाइल इट इज़ हार्ड टू ट्रूली गॉज द इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसीज ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक हेल्थ, इट इज़ अ फैक्ट दैट टोबैको कंजम्पशन इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ कैंसर. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ओ क्या देखने लगा यार मैं, ओ ठीक है, सॉरी, वो किसी और चीज़ का मैंने वो कंक्लूजन पढ़ रहा था मैं. उसको जाने दो. हाँ, एज पर वीपो इन अ लीगल सेंस एन इंडस्ट्रियल डिजाइन constitutes the ornamental or aesthetic aspect of an article. An industrial design, ठीक है, may consist of 3 dimensional features such as the shape of an article, or 2 dimensional features such as pattern, line और colors. ठीक, जैसे क्या है कि जो स्पेशल उसके जो 3D डिज़ाइंस हैं, ओके, और यू कैन से द 2D फीचर्स हैं, जैसे कि उसमें क्या क्या कलर होना चाहिए. ठीक है, व्हाट आर द पैटर्न्स. ठीक है, व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ द लाइंस, पैटर्न्स ऑफ द कलर्स, दैट मीन्स कि आफ्टर इंटरवल ऑफ 1 or 2 लाइंस देयर इज द स्पेसिफिक कलर इज हियर फिल्ड. ठीक है, एंड सम 3D एस्पेक्ट्स और ऑल्सो सम, आप कह सकते हो यहाँ पे बहुत सारे कुछ 3D डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, डायमेंशनल फीचर्स की, सच एज शेप ऑफ एन आर्टिकल. ठीक है, अब जैसे मैंने बहुत अच्छा बेस्ट एग्जांपल दिया था, जैसे सपोज करो कि एडिडास का शूज़ है. ठीक है, एडिडास का शूज़ है, तो एडिडास के शूज़ का डिज़ाइन है कि देयर इज 3 स्टिप्स. कितनी? 3 स्टिप्स होंगी. और कहाँ पे 3 स्टिप्स होंगी? वो आर्टिकल्स के, मतलब जो भी शूज़ होता है ना उसके बगल में 3 स्टेप्स होता है. ओके, so this is the what, this is the design of Adidas. So this, okay, so it is considered as the industrial design of the Adidas. ठीक, क्या कलर उसमें फिल होगा वो अलग अलग जो भी आर्टिकल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग इट विल बी वेरीड. ठीक है, so the next one is the GI, or also consider the geographical indication. Geographical indication. ठीक है, so here is law which is known as the Geographical Indication of Goods Act 1999. Geographical
indication of Goods Act 1999. And here is the ministry. Ministry is the Ministry of Commerce and Industry, and there is department. This is the DIP. Okay. So product with a specific geographical region, ठीक है, and possess the qualities or a reputation that are due to that origin, okay, are considered as the geographical indicators, ठीक है. तो GI is a sign, ठीक है, the geographical indication is a sign which is actually giving to which is actually given to that kind of the particular species of crop और प्रोडक्ट, और आप ये कह सकते हो कि फॉर द गुड्स, ठीक है, ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन, ठीक है, विद द स्पेसिफिक क्वालिटीज एंड द रेप्यूटेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ड्यू टू दैट पर्टिकुलर ओरिजिन. ठीक, जैसे सपोज करो कि आपने बहुत सुना होगा बनारस की साड़ियाँ, ओके, ठीक है, तो जो उसका पैटर्न है बनाने का, क्लियर, जो उसका तरीका है बनाने का, विच काइंड ऑफ द मटेरियल्स आर यूजिंग फॉर द मैन्युफैक्चरिंग द साड़ी, ओके, तो उसका जो आप कह सकते हो कि क्वालिटीज़ जो होगी वो स्पेसिफिक होगी, और वो क्वालिटी केवल उसी रीजन में मिलेगी, वहीं उसी बनारस के रीजन में ही मिलेगी. फाइन, ओके. जैसे सपोज करो कि तिरुपति के लड्डू, हाँ, तिरुपति के लड्डू, तो तिरुपति के जो वहाँ पे जो लड्डू मिलता है ना, तो उसका जो उसमें जो फ्रेगरेंस होगा, उसका जो टेस्ट होगा, ठीक है, इट विल बी ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज अवेलेबल, ऑलवेज प्रेजेंट इन दैट स्पेसिफिक काइंड ऑफ द लड्डू फ्रॉम द तिरुपति, ठीक है. तो वहाँ से जो लड्डू बनेगा उसी में वो टेस्ट, टेक्सचर आप कह लो, उसमें एरोमा कह लो उसका, ठीक है, फ्रेगरेंस कह लो, वो वहीं पे मिलेगा, और सॉफ्टनेस कह लो, क्वालिटी कह लो प्रोडक्ट की, ठीक है. तो दिस इज कंसिडर द जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स, एंड फॉर दिस द GI साइन इज प्रोवाइडेड. द GI साइन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन साइन, विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है. बोला टू फंक्शन एज अ GI, अ साइन मस्ट बी आइडेंटिटी अ प्रोडक्ट एज ओरिजिनेटिंग इन अ गिवन प्लेस. दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ ऐसा साइन होना चाहिए, ठीक है, जो कि उसको बताए, यस, आइडेंटिटी, दैट मीन्स कि दैट वुड बी आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ओरिजिनेटिंग प्लेस, ठीक, कि वो वहाँ की पहचान है, वो कहाँ की, पर्टिकुलर किसी प्लेस की, ओके. जैसे अब बोला जाए तो तिरुपति की पहचान है तिरुपति के लड्डू, काइंड ऑफ दिस, ओके. ऑल्सो द क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स और रेपुटेशन ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी इसेंशियली ड्यू टू द प्लेस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, उस प्लेस की वजह से होना चाहिए. सिंस द क्वालिटीज डिपेंड ऑन द जियोग्राफिकल प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, देयर इज अ क्लियर लिंक बिटवीन द प्रोडक्ट एंड इट्स ओरिजिनल प्लेस ऑफ द प्रोडक्शन. ठीक, जैसे जहाँ पे वो बन रहा है उनके बीच में बिल्कुल क्लियर लिंक होना चाहिए कि हाँ, ये जो टेक्सचर आ रहा है वहीं का आ रहा है, क्लियर. जैसे आपको पता होना चाहिए कि ये जो कहाँ के, कलकत्ता के रसगुल्ले मशहूर है ना, पश्चिम बंगाल के रसोगुल्ला, ओके. तो उसका जो टेक्सचर है, उसका जो टेस्ट है, उसका जो क्वालिटी है प्रोडक्ट का, ठीक है, तो वो केवल वहीं पे मिलता है और कहीं नहीं मिलता है, ठीक है. तो रसोगुल्ला क्या है, वहाँ का GI है, फाइन, ओके. So since the qualities depend on the geographical place of the production, okay, there is a clear link between the product and the origin place of the production. ठीक, a geographical indication right enables those who have the right to use the indication to prevent its use by a third party whose product does not conform to the applicable standard. बोल रहे हैं कि ये जो राइट दिया जाता है ना, तो उसको ये एक
तरीके का ऐसा राइट है, ठीक है, विच इज एक्चुअली प्रिवेंट करता है, क्या प्रिवेंट करता है कि कोई भी थर्ड पार्टी जो है उस जीआई को, उस टर्म को यूज करके अपने प्रोडक्ट को नाम ना दे, ठीक है, और उसका प्रोडक्ट जो है वो उस स्टैंडर्ड पे मैच भी ना करता हो उसके बावजूद भी। अब कोई बोले आपको कि कोई भी लड्डू उठा के बोले ये तिरुपति के लड्डू हैं, ठीक है, तो वो टेक्सचर, वो टेस्ट, वो उसमें वो चीज़ सेम चीज़ नहीं मिलेगा। ओके, तो दिस जीआई इज हियर, ठीक है, गिवन, you can say it is providing the right to use to the indications to prevent its use by a third party, okay, whose product does not conform to the applicable standard, जो भी स्टैंडर्ड है उसको पूरा फुलफिल नहीं करता है। फाइन, फॉर एग्जाम्पल इन द jurisdiction in which the दार्जिलिंग geographical indication, ठीक है, दार्जिलिंग geographical indication is protected, producer of दार्जिलिंग tea can excluded the use of the term दार्जिलिंग, ठीक है, for tea not grown in their tea gardens are not produced according to the standards set out in the code of practice for the geographical indication। दैट मीन्स कि जो दार्जिलिंग टी है ना, वो जहाँ पे मतलब उसका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इट इज प्रोवाइडिंग द एक्चुअली द वर्ड दार्जिलिंग। ओके, तो दिस वर्ड, ठीक है, विल नॉट यूज, ठीक है, विल बी नॉट यूज बाई एनी अनदर, ठीक है, काइंड ऑफ द, आप कह सकते हो मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर ऑफ फार्मर, ठीक है, विच आर नॉट बिलोंग्स टू द दार्जिलिंग। ठीक, तो वो टी प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन उसको वो दार्जिलिंग टी नहीं बोलेंगे फिर। क्लियर? तो दार्जिलिंग टी इज अ जीआई ऑफ द दार्जिलिंग। दार्जिलिंग है कहाँ पे? तो वेस्ट बंगाल में। क्लियर? तो वेस्ट बंगाल का ही एक मतलब आप कह सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट है, सिटी है, टाउन है। तो दार्जिलिंग टी वहीं पे क्या होती है, प्रोड्यूस की जाती है। फाइन, ओके, सो however, a protected geographical indication does not enable the holder to prevent someone from making a product using the same techniques as those set out in the standards for that indication. Okay, protection for a geographical indication is usually obtained by acquiring a right over the sign that constitute the indication। ठीक, चलो ठीक है, तो ये सब चीज़ें देख लेना। हाँ, इसमें बोल रहे हैं some notable geographical indications are here। ठीक है, कुछ यहाँ पे ऐसे कुछ जीआई दिए गए हैं, like some what, some notable GI tags are here। ठीक है, ठीक, like the बासमती राइस, बासमती राइस, ठीक, तो बासमती राइस is a special long grain aromatic rice grown in the particular Indo-Gangetic plains, the geographical region of the Indian subcontinental। देखो, एक्चुअली ऐसा है कि बासमती राइस जो है, ठीक, दिस इज द जीआई। कैसा होता है ये? एक ऐसे ना बिल्कुल एकदम क्या बोल सकते हैं इनको आप, कि लॉन्ग ग्रेन होते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल जो राइस का साइज होता है उससे बड़ा होता है। एंड दिस इज अ एरोमेटिक राइस एक्चुअली, उसमें बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है। फाइन, बहुत प्यारा सा एरोमा होता है उनका। क्लियर? एकदम आप कह सकते हो कि प्लीजेंट एरोमा होता है। क्लियर? एंड दिस इज एक्चुअली grown in the particular Indo-Gangetic region। इंडो-गंगेटिक, ठीक है, मतलब अगर इंडो गंगेटिक रीजन की बात की जाए तो प्यारा भारत देश महान हमारा होता है, ऊपर की तरफ में इंडस रिवर बह रही है, ठीक, जो कि आप देख सकते हो उधर से बहते हुए, और वहाँ से लेकर के जो नीचे जो गंगा रिवर है, ओके, तो इस बीच में जो भी क्या पड़ता है, प्लेन पड़ता है इस एरिया में, ठीक है, इंडो रीजन में एज वेल एज द गैंगेटिक रीजन में जो भी प्लेन एरिया पड़ता है वहाँ का जीआई टैग है हमारा क्या, द जीआई टैग इज द बासमती राइस। ओके, historically it is being produced in the undivided India from a long time and with a recorded history of over 200 years। that means बोला जा रहा है कि अप्रॉक्स फ्रॉम for 200 years, ठीक है,
फॉर 200 years. ठीक है, it is being produced. ठीक, बहुत पहले से इसका प्रोडक्शन हो रहा है. ठीक है, सिंस आप कह सकते हो कि फ्रॉम द टाइम ऑफ द अनडिवाइडेड इंडिया, जब इंडिया का डिवीज़न नहीं हुआ था. क्लियर. So here is the Intellectual Property Appellate Board in the 2016 ordered Chennai-based GI registry to issue the GI tag for the basmati rice. ठीक है, 7 स्टेट्स यहाँ पे जिनको GI टैग जिनको दिया गया है बासमती के लिए: पंजाब, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश. ओके, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूके, यूपी, ओके, एंड JNK. So they are the owner. These 8 states. ठीक है, ये जो 8 states हैं, clear, they are the actual owner of GI tag of what? Basmati rice. The Punjab, Haryana, Himachal, UK, UP and JNK. These 7 states actually. ठीक है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, यूके, है ना, यूपी एंड द JNK. 7 स्टेट्स है, 8 नहीं है. ठीक है, 7 स्टेट्स आ रही है. नेक्स्ट वन इज द उड़ीसा कंधामाल हल्दी. उड़ीसा कंधामाल हल्दी. हल्दी मीन्स व्हाट? टर्मरिक. ठीक है, कंधमाल हल्दी. ओके, so here is the Odisha's कंधमाल हल्दी, फेमस फॉर इट्स हीलिंग प्रॉपर्टी एक्चुअली. ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा क्या है, फॉर healing property. Enormous healing property is having the Kandhamal Haldi. Okay, and is a few steps away from the receiving GI tag as the Geographical Indication Journal in December 2018 advertised its application seeking objections. Kandhamal Apex Spices Association for Marketing, based at the district headquarters town of Fulbani, had moved for registration Kandhamal Haldi, which was accepted under the subsection of section 13 of the GI of Goods Act 1999. Okay, so turmeric is the main cash crop of the tribal people in the Kandhamal. Okay, so this is the main cash crop of tribes, people of कंधमाल. ठीक है, कंधमाल जगह है वहाँ पे. ओके, तो वहाँ के जो ट्राइब्स हैं वो इसको यूज़ करते हैं. अपार्ट फ्रॉम डोमेस्टिक यूज़, टर्मरिक इज ऑल्सो यूज फॉर द कॉस्मेटिक एंड द मेडिसिनल पर्पज. ठीक है, कॉस्मेटिक एंड मेडिसिनल पर्पज. ओके, सो दिस इज द कंधमाल हल्दी. क्लियर. ओके, देखो नेक्स्ट है द रसगुल्ला. द नेक्स्ट वन इज द लाइक रसगुल्ला. ठीक है, मतलब बांग्ला में बोल तो रसोगोल्ला है ना, तो जैसे बोलते हैं. द डिश ओरिजिनेटेड इन ईस्ट इंडिया. ठीक है, ईस्ट इंडिया डिश. ठीक है, एंड प्रेजेंट डे
state of Odisha and the West Bengal. State of Odisha and West Bengal. West Bengal. Okay. So here is बोल रहा है कि claimed to be its birthplace. In 2015, a committee formed by the government of Odisha, ठीक है, asserted that the sweet had originated in Odisha, where it is offered at the पुरी जगन्नाथ टेम्पल. ठीक है, पुरी जगन्नाथ टेम्पल में ये मिलता है. In 2016, the West Bengal government applied for a geographical indication tag for the variant called the Banglar Rasagulla, or you can say the Bengali Rasagulla. Bangalore नहीं यार, कुछ और था. बंगलार. ठीक है, बंगलार रसो रसो गोल्ला. ओके, ठीक. तो by the year of 2016, this is applied by the Bengal government. ठीक है, and in the 2015, this is applied for by the Odisha government. Okay, so the clarifying that the Bengal and Odisha variants were different in both in color, texture, taste, juice content and method of manufacturing. बोले कि जो दोनों का था, दोनों बिल्कुल डिफरेंट थे. बंगलार रसगुल्ला एंड द रसगुल्ला ऑफ फ्रॉम द स्टेट ऑफ उड़ीसा. So taste, textures, okay, manufacturing processes, all are the different. So in the year of November 2017, the GI registry of the India granted West Bengal the GI status for Banglar Rasgulla. ठीक है, so by the 2017 it becomes the GI of Bengal, West Bengal. ठीक है. In the 2017, when the West Bengal got its Rasagulla GI tag, the Registry Office of India clarified that West Bengal has the GI status for the Banglar Rasagulla and Odisha can claim it too if they cite the place of the origin of their variant along with color, texture, juice content and method of manufacturing. Okay. हाँ, इन्होंने बोला कि अगर इनको चाहिए, उड़ीसा को ये जीआई टैग चाहिए, ठीक है, तो ऐसा प्लेस हमें बताएं जहाँ पर सेम प्रोसेस, सेम टेक्सचर, सेम टेस्ट का रसगुल्ला जो है सेम बिल्कुल बंगलार रसगुल्ला जैसा मिलता हो. क्लियर. वेस्ट बंगाल हैव प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट्स व्हाई द बंगलार रसगुल्ला बिकेम द जीआई टैग फॉर द वेस्ट बंगाल. ओके, एंड उड़ीसा को नहीं मिला फिर. ओके. So these are the informations related to the geographical indications. Okay. Next one is the plant varieties. Plant varieties. Okay. In which there is a law, the protection of plant varieties and farmers. Law, the protection of plant varieties and farmers act, sorry, farmers, तो नहीं, Farmers Rights Act 2001. ठीक है, so there is a law which is actually provide the protection regarding the plant varieties, consider as the protection of plant varieties and Farmers Right Act 2001. And here is the ministry. Ministry is here Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture. Ministry of
एग्रीकल्चर, ठीक है. ये इज द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन. ठीक है. तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. ओके. So with the advent of hybrid and the genetically modified plants, ठीक, it is possible to create a different quality of plants of the same genus or species. ठीक है. There has been an unending quest of developing plant varieties that are more productive, more fortified with nutrients, more resistant to vagaries of nature, and are reasonably priced. Such development demands a lot of expenditure and time, just like any other patentable invention. ठीक है. So TRIPS agreement says that either a member should cover plant varieties in domestic patent law, or it should be provided by a sui generis protection. Accordingly, India's patent law does not cover the plant varieties, and uh, special acts provide the sui generis protection. ठीक है. यहाँ पे बोल रहे हैं कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्पेशल varieties plant. Okay, that means if any farmer or any, आप कह सकते हो कि plant species developer have actually developed a special species of the special variety of the plants, ठीक, of the same species. like जैसे कि हमने बात किया था कि एक, याद नहीं आ रहा है, गुजरात के एक फार्मर, ठीक है, ही हैव एक्चुअली डेवलप्ड अ स्पेशल टाइप ऑफ द पोटैटो. ठीक. तो this process also a time taking process. A lots of time is consumed in in this kind of the project. Lots of money is required for this kind of the project, like a न्यू इन्वेंशंस. ओके. तो जैसा जिससे इन्वेंशन में इतना सारा प्रोसेस, इतना टाइम कंज्यूम होता है ना, उस तरीके से फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस काइंड ऑफ स्पीसीज दिस इज ऑल्सो अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. ओके. तो इसके लिए क्या है कि एक मतलब लॉ जो है वो अलग से बनाया गया, जो कि इसको क्या करे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराए. एंड दिस लॉ इज कंसिडर एज द POPVFR. POPVFR. ठीक है. दिस इज द एक्ट, एंड the full form of this is that protection of plant varieties protection of plant varieties and farmers right authority and farmers right authority. Okay. That means in the case of the protection of the new plant varieties, there is a special act, okay, or special law which is considered as the what, which is considered as the POPVFR. ठीक है. protection of plant varieties and farmers rights authority. Okay. farmers rights authority. TRIPS is actually not providing any patent law regarding this. ठीक है. सो पेटेंट लॉ आप कह सकते हो कि डज नॉट कवर द प्लांट वेराइटीज. ठीक है. यहाँ पे जो भी प्लांट से रिलेटेड जो राइट्स की बात की जा रही है, उनकी वैरायटीज डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो इन दैट केस देयर इज नो एनी पेटेंट लॉ. ठीक है. दैट मीन्स हियर इज द न्यू अथॉरिटी which is actually responsible for the protection of that kind of the plant varieties act rights. Sorry. ठीक है. So this is considered the POPVFR, protection of plants varieties and the farmer rights authority. Clear? Okay.
द एप्लीकेशन कैन बी मेड, ठीक है, टू अथॉरिटी टू क्लेम प्रोटेक्शन ऑन अ पर्टिकुलर प्लांट वैरायटी। ओके, दैट मीन्स ये जो अथॉरिटी है ना, ठीक, इसके लिए एक एप्लीकेशन बनाया जाएगा, ठीक है, एप्लीकेशन, ठीक, बाय द फार्मर्स और प्रोड्यूसर, ठीक है, जो भी उस प्लांट वैरायटी का प्रोड्यूसर होगा या जो फार्मर उसको उस प्लांट वैरायटी डेवलप कर रहा है, तो इट वुड बी प्रोवाइड अ एप्लीकेशन टू द अथॉरिटी, ठीक है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रीड ऑफ द, you can say, the species of the that particular plant variety. Okay, so Indian law not only provides for the right of the breeders and the researchers, but it also provides right to seed to farmers and the village community. Registering the variety under the authority offers certain protection to its growers under the law. Okay, ये बोल रहे हैं कि ये केवल यही नहीं है कि ब्रीडर्स और रिसर्चर्स को ये अथॉरिटी प्रोवाइड कराए, नॉट प्रोवाइड्स फॉर द राइट्स ऑफ ब्रीडर, बट इट ऑल्सो प्रोवाइड द राइट टू सीड टू फार्मर्स, ठीक है, एंड द विलेज कम्युनिटी। अगर कोई फार्मर्स और विलेज कम्युनिटी जो है, ठीक है, अगर वो भी ऐसा कुछ डेवलप करते हैं, तो दिस लॉ विल ऑल्सो प्रोवाइड द राइट्स टू दोज फार्मर्स एंड द विलेज कम्युनिटी। जैसे कोई ट्राइबल है, ट्राइबल कम्युनिटी है, ओके, इफ दे आर एक्चुअली डेवलपिंग एनी काइंड ऑफ द स्पेशल species of that of the plants, okay, so this authority and this law will provide the rights to the farmers as well as the village community, whole village community, okay. लास्ट पॉइंट इसमें हम देख लेते हैं। तो दीज आर द सम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, अंडर द रेफरेंस ऑफ व्हाट, इंडिया, ओके। तो अब हमको यहाँ पे बात करना है द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी 2016, क्लियर, ओके। तो इंडियाज नेशनल IPR policy was launched in the 2016, okay, and policy with the complies policy which actually complies with the WTO, ठीक है, agreement on TRIPS, aims to sustainable entrepreneurship and the boost government's scheme Make in India, ठीक है। ये बोल रहा है कि this policy is actually complies with the WTO's, ठीक है, ट्रिप्स एग्रीमेंट, है ना, ये उसके साथ कंप्लाई करके बात करता है ट्रिप्स एग्रीमेंट के साथ में, एंड विच एम्स इज टू सस्टेन द एंटरप्रेन्योरशिप एंड द बूस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स मेक इन इंडिया। ये एक तरीके का मेक इन इंडिया जो स्कीम है ना, गवर्नमेंट स्कीम है, उसको बूस्टअप प्रोवाइड कराता है दिस पॉलिसी इज कंप्लाइड विद द WTO ट्रिप्स एंड प्रोवाइडिंग द बूस्टअप फॉर द गवर्नमेंट स्कीम मेक इन इंडिया, ओके। जिसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसको हमको डिस्कस करना है, ठीक। द फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग दिस, द पॉलिसी एम्स टू पुश द IPRs एज अ मार्केटेबल फाइनेंशियल असेट्स, प्रमोट इनोवेशन एंड द एंटरप्रेन्योरशिप विद प्रोटेक्टिंग द पब्लिक इंटरेस्ट, ओके। बोल रहे हैं कि IPRs को प्रोत्साहित करता है एज अ
as a financial asset. Okay, and it also promote the innovation and the entrepreneurship. Okay, while protecting the public interest, and this is also protecting the public interest. So पॉलिसी है, तो उस पॉलिसी के तहत कुछ लॉज हैं, नॉर्म्स हैं, रेगुलेशंस हैं, फाइन. So it is actually encouraging the what? Encouraging the IPR, IPR, and also encouraging the public interest as well as protecting the public interest. Fine. Okay. The plan will be reviewed every 5 years. Is consultation with stakeholders. ठीक है. ये बोल रहे हैं कि जो भी इसके अंडर में प्लान है, the plan will be reviewed every 5 years. ठीक है, हर 5 साल में उसका रिव्यू होगा. ओके. To have strong and effective IPR laws, the steps would be taken, including a review of existing IP laws to update the, improve them, or to remove anomalies and the inconsistencies. ठीक बोल रहे हैं कि एक्चुअली दिस सेटअप इफेक्टिव IPR लॉज. ठीक, और जो भी ऐसे उसमें जो भी कुछ कमियां हों, ठीक, तो देयर इज द नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट. ठीक, दैट पर्टिकुलर लॉज रिलेटेड टू द IPR वुड बी carried out by this policy, under this policy. Okay, the policy is entirely compliant with the WTO's agreement on TRIPS. ठीक है, that means कि WTO have given the agreement, the TRIPS agreement on the trade related aspects of the intellectual property rights. ठीक है, so this is entirely completely compliant with the what? Entirely compliant with the TRIPS. Okay, so a special thrust on awareness generation and effective enforcement of the IPR, beside the encouragement of IP commercialization through various incentives. Okay, that means कि हर तरीके का अवेयरनेस प्रोग्राम कराना regarding the IPR, as well as the effective enforcement of the IPR. That means if anyone is here finding find the violating the IPR. Okay, so the quick actions should be given under this policy against that person. Okay, so it is actually encouraging the IP commercialization through the various incentives. Okay, तो IP जो भी हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसको कमर्शियलाइजेशन करके, ठीक, बहुत सारे टाइप्स के इंसेंटिव्स जनरेट किए जा सकते हैं. क्लियर? ओके. इंडिया विल इंगेज कंस्ट्रक्टिवली इन द नेगोशिएशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड द एग्रीमेंट्स. ओके, that means India today working on the intellectual property rights. ठीक है, and this is the actually the steps of India is the constructively. ठीक, it is working by the compliance with the international agreements and international treaties for the development of the economic boost up in the इंडिया. ठीक है, ऑफ द कंट्री. तो इस तरीके से वो सबके साथ मिल करके काम कर रहा है इंडिया जो है हमारा. ओके, एंड इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट इन कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर्स ऑल्सो. फाइन. द गवर्नमेंट विल एग्जामिन द एक्सेशन टू सम मल्टीलैटरल ट्रीटीज विच आर इन इंडियाज इंटरेस्ट एंड बिकम अ सिग्नेटरी टू दोज ट्रीटीज विच इंडिया हैज de facto implemented to enable it to participate in their decision making process, the policy said. That means कि the ऐसे जितने भी treaties हैं, okay, या ऐसे जो भी agreements हैं which are beneficial for us, which are constructive for us. Okay, so India is actually joining that kind of the protocols, that kind of the agreements, that kind of the treaties, and making the becoming a signatory country of that particular आप कह सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन, दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट, दैट पर्टिकुलर ट्रीटीज और MOUs जो भी कहना चाहो आप. क्लियर? ओके. इट सजेस्ट making the Department of Industrial Policy. That means this policy is suggesting the
making a department of the industrial policy and promotion, which is DIPP. Okay, DIPP, the nodal agency for all IPR issue. ठीक है, इसने ये सजेशन दिया है कि DIPP को क्या बना दो, नोडल एजेंसी बना दो, एज नोडल एजेंसी फॉर ऑल IPR इश्यूज. ओके, तो ये जो इसको नोडल एजेंसी बना दोगे ना, तो ये जो डिफरेंट मिनिस्ट्री जो गवर्न करती है ना डिफरेंट IPRs को, ठीक है, तो आफ्टर दिस स्टेप, ठीक है, all would be deal by the DIPP, because of the DIPP will become the nodal agency for all kind of the IPR. Okay. हाँ, copyright related issues will also come under the DIPPs, ठीक, ambit from that of the Human Resource Development Ministry. देखो ये बोल रहे हैं कि जो HRD मिनिस्ट्री के अंदर में जो काम कर रहा है हमारा क्या कॉपीराइट वाला इशू, उसको भी DIPP के अंदर कर दो. ठीक है, इससे चीज़ें क्या हो जाएंगी, डील करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी उसमें. ओके, ट्रेडमार्क ऑफिसेस हैव बीन मॉडर्नाइज्ड एंड द एम टू रिड्यूस द टाइम टेकन फॉर एग्जामिनेशन एंड रजिस्ट्रेशन टू जस्ट 1 month बाय 2017. ओके, अब बोला कि ट्रेडमार्क ऑफिस को भी मॉडर्नाइज किया गया एंड हैव बीन मॉडर्नाइज्ड एंड aim is to reduce the time taken for examination and registering. जो भी करना है कि कहाँ हाँ उसका ट्रेडमार्क है नहीं है, ये सब सारा करने में ना, मतलब कि 1 month में सारा चीज़ कंप्लीट हो जाना चाहिए. ओके, द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी हायर्ड अराउंड 100 न्यू एग्जामिनर्स फॉर द ट्रेडमार्क. ओके, सो एग्जामिनेशन टाइम फॉर द ट्रेडमार्क हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 13 months to 8 months, with the new target being to bring the time down to 1 month by March 2017. तो पता नहीं अभी उस पर रिपोर्ट आएगी तो आप उसको चेक करते रहना अगर आती है तो, क्योंकि दिस इज़ द पॉलिसी ऑफ द 2016. ओके, एंड दिस पॉलिसी इज एमिंग फॉर द व्हाट, फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रेडमार्क. ठीक, इशुएंस ऑफ द इशूइंग द ट्रेडमार्क्स. ठीक है, ये बोल रहा है कि जो 13 to 18 months का टाइम लगता है, 13 months और 8 months का जो टाइम लगता है, इट इज़ एक्चुअली एमिंग टू रिड्यूस दैट टाइम. ठीक है, दैट टाइम बाय द टाइम डाउन टू 1 month. ठीक है, तो इन्होंने ऐसे मार्च 17 में टारगेट किया था कि इसको 1 month कर देना है रिड्यूस करके. ओके, सो फिल्म्स, म्यूजिक, इंडस्ट्रियल ड्राइंग विल बी कवर्ड बाय द कॉपीराइट. ठीक है, बोल रहे हैं कि ये सब कुछ भी फिल्म, म्यूजिक, इंडस्ट्रियल ड्राइंग, इनको भी किया जाएगा कॉपीराइट के अंदर कंसीडर किया जाएगा. द पॉलिसी ऑल्सो सीक्स टू फैसिलिटेट डोमेस्टिक IPR फिलिंग. ठीक है, ध्यान समझना, द पॉलिसी ऑल्सो सीक्स टू फैसिलिटेट डोमेस्टिक IPR फिलिंग फॉर द इंटायर वैल्यू चेन फ्रॉम IPR जनरेशन टू कॉमर्शियलाइजेशन. ठीक है, एंड इट एम्स टू प्रमोट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट थ्रू टैक्स बेनिफिट. ओके, अगर इसमें बोल रहे हैं कि अगर किसी भी तरीके का कोई जैसे डोमेस्टिक IPR फिलिंग करता है किसी इन्वेंशन वगैरह का, फाइन, तो ये क्या करते हैं कि इंटायर वैल्यू चेन फ्रॉम द IPR जनरेशन टू कॉमर्शियलाइजेशन, तो उसको क्या कहते हैं, कॉमर्शियलाइजेशन किया जा सकता है. एंड फॉर दिस देयर इज अ टैक्स बेनिफिट प्रोग्राम शुड बी लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, एंड फॉर व्हाट, फॉर प्रमोट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट. जैसे अभी ऐसा होता है ना कि जैसे कोई NGO में कुछ पैसे दे देता है, अगर NGO में पैसे दे देता है तो उसका टैक्स उतना बच जाता है. ये चीज़ होता है ना, और लोग टैक्स बचाने के लिए NGOs को क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं. क्लियर. सो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ना कि अगर कोई IPR के लिए अप्लाई करता है, ठीक, और अगर वो कोई चीज़ मान लो पेटेंट कराता है, नया इन्वेंशन करता है, तो उसको क्या करना चाहिए, टैक्स बेनिफिट देना चाहिए उसके जो भी इनकम है उसमें. ठीक, तो इट इज़ अ गुड स्टेप टू प्रमोट द काइंड ऑफ research and development program. Okay, so proposal to create an effective loan guarantee scheme to encourage the startup. हाँ, अगर कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है and there is a possibility of the development of the new kind of the technology as well as the
chances of the new invention. So government should be provide a what? Provide a क्या बोल सकते हो उसको? Credit scheme. ठीक है, क्रेडिट स्कीम और यू कैन से द लोन गारंटी स्कीम. ठीक है, तो इससे चीज़ें और ज़्यादा इंकरेज होंगी. फाइन. So here proposal to create, okay, it also says India will continue, it also says India will continue to utilize the legislative spaces and flexibilities available in international treaties and the TRIPS agreement. These flexibility include the sovereign right of countries to use the provisions such as Section 3D and CLs for ensuring the अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल एंड लाइफ सेविंग ड्रग्स एट अफोर्डेबल प्राइस. ठीक, बोल रहे हैं कि अगर जैसे गवर्नमेंट किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के साथ अगर कोई साइन करता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ना, इंडिया विल कंटिन्यू टू यूटिलाइज द लेजिस्लेटिव स्पेसेस, ठीक है, एंड फ्लेक्सिबिलिटीज अवेलेबल इन इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड द ट्रिप्स एग्रीमेंट. किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और ट्रिप्स एग्रीमेंट करता है तो उसको क्या है कि एक फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए. दैट मीन्स कि अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी कोई जो है वो यहाँ पे आकर के प्रोडक्शन करना चाहती है किसी पर्टिकुलर ट्रीटी के अंडर, ओके, तो यहाँ पे अब जैसे इंडिया को क्या हो जाता है कि जो क्या बोल सकते हो उसको यार, ट्रेड और इंडस्ट्री यहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए एक रैंकिंग दिया जाता है. हाँ, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स. ओके, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में इंडिया का बड़ा मतलब वर्स्ट प्लेस है, उतना अच्छा माना नहीं जाता क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे दुनिया भर के पेपर वर्क, सो मेनी टाइप्स ऑफ द डिपार्टमेंट, सो मेनी टाइप्स ऑफ द ट्रिब्यूनल्स, अथॉरिटीज़ आर हियर. ठीक है, तो उसमें कोई भी फॉरेन कंपनी जो ना पचड़े में फंसना नहीं चाहती है. ओके, सो इन दिस केस द इंडिया को बहुत ज़्यादा क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए थोड़ा सा, कि ठीक है अगर जैसे हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उस पर गवर्न मत करो, गवर्न करो, बट सपोज दैट कि इफ़ यू हैव गिविंग द 1 month ऑफ द टाइम, ओके, और अगर वो पर्टिकुलर वो फॉर्म होता है जो लेट होता है आपको प्रोवाइड कराने में डॉक्यूमेंट्स विद इन अ मंथ, ओके, तो इन दैट केस आपको फ्लेक्सिबिलिटी ये रखना चाहिए कि चलो इट्स देयर इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी कि आप इसको 1 महीने के बजाय आप इसको 3 month और 6 month में प्रोवाइड करो. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो वर्ल्ड लेवल पे जो भी इनोवेशंस हैं, ओके, वो एक तरीके का क्या हो रहा, जो भी इन्वेंशंस हैं तो उसका एक तरीके से इन्फ्लो होगा कहाँ पर, इंडिया में. ठीक है, तो एक तरीके से क्या होगा, इन्फ्लो होगा. सो काइंड ऑफ द इनोवेशन, द चांसेस ऑफ द इनोवेशन इज गेट हाई इन दैट केस. ओके, तो इंडिया को ये चीज़ें करनी चाहिए. फाइन. तो इससे क्या होगा कि बहुत सारी जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज़ हैं, दे हैव एक्चुअली डेवलपिंग द काइंड ऑफ द ड्रग्स कंसिडर द लाइफ सेविंग ड्रग्स. ओके, तो अब वो यहाँ आना चाहती हैं, यहाँ प्रोडक्शन करना चाहती हैं, बट ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के उसमें रैंकिंग में इंडिया अच्छा नहीं है, बहुत सारे पेपर वर्क्स हैं यहाँ पे. ओके, तो वो इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहते. अब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ प्रोडक्शन करेंगे आके तो यहाँ के लोगों के लिए चीज़ें क्या होंगी, अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल होगी, वो दवाइयाँ अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल होंगी कंपेयर टू कंप्यूटर कि इफ़ द एनी वन इज इम्पोर्टिंग एनी मेडिसिन और ड्रग्स फ्रॉम अनदर फॉरेन कंट्री. ओके, तो उसको ये चीज़ें अच्छी करनी चाहिए, दुरुस्त करनी चाहिए. फाइन. तो ये पॉलिसी जो है 2016 की, उसमें ऐसा प्रोविज़न था. ओके, पॉलिसी लेफ्ट द कंट्रीज प्लांट्स द पॉलिसी लेफ्ट द countries' patent laws enact the specifically did not open up Section 3D of Patent Acts, which set the standard for what is considered an invention in India for reinterpretation. ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कुछ सेक्शन इसका 3D है पेटेंट्स एक्ट्स का, विच सेट द स्टैंडर्ड फॉर व्हाट इज कंसिडर्ड एन इन्वेंशन इन इंडिया. ठीक, बोल रहे हैं कि किस टाइप का इन्वेंशन इंडिया में हो सकता है, उसका क्या स्टैंडर्ड हो सकता है. ठीक, तो दिस इज एक्चुअली कंसीडर रिगार्डिंग द इंडिया अंडर दिस सेक्शन 3D ऑफ द पेटेंट्स एक्ट. ओके, तो ऑन कंपलसरी लाइसेंसिंग, CL के लिए बोल रहे हैं, ऑन कंपलसरी लाइसेंसिंग इंडिया हैज इश्यूड द ओनली CL फॉर अ कैंसर ड्रग अंडर द इंडियन पेटेंट एक्ट. ठीक, अगर इंडियन पेटेंट एक्ट की बात करें तो इंडिया इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग द इश्यूड ओनली द CL for the CL is standing for the compulsory licensing for the cancer drug. Okay, so CL can be issued for a drug if the medicine is deemed unaffordable
among other conditions, and the government grants permission to qualified generic drug makers to manufacture it. ठीक है, दैट मीन्स कि अब ऐसे सीएल किसके लिए प्रोवाइड कराए जाते हैं? जैसे सपोज करो कि कोई ड्रग वो नहीं कर पा रहा है, अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, इतनी महंगी ड्रग है, ओके, तो द कंपल्सरी लाइसेंस इज प्रोवाइडेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट एंड इट्स grants the permission to the permission to qualify the generic drug makers to manufacture it. दैट मीन्स कि बहुत सारी कंपनीज उसमें एप्लीकेशन डालेंगी, ठीक, और जो सारे मतलब कि पॉइंट्स को फुलफिल करेंगे, ठीक है, तो दे आर कंसिडर एज द वर्ड क्वालिफाइड द जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स. ओके, तो वो एक तरीके की ऐसी कंपनी होंगी जो हर चीज़ में खरी उतरेंगी इंडिया के पैनल में. ओके, उनको बोला जाएगा कि आपको इस दवा का प्रोडक्शन करना, इस मेडिसिन का प्रोडक्शन करना चाहिए. क्लियर? ओके, द आईपीआर पॉलिसी favored the government considering the financial support for a limited period on sale and export of products based on IPRs generated from the public funded research. बोल रहे हैं कि जो भी पब्लिक फंड रिसर्च में जो भी आता है उसमें गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ना, गवर्नमेंट कंसीडर द फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर लिमिटेड पीरियड. ठीक, तो एक लिमिटेड पीरियड के लिए उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए फॉर द सेल और यू कैन से द एक्सपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द IPRs जनरेटेड. ठीक है, तो जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं उनके इंपोर्ट के लिए उसको क्या करना चाहिए कि पर्टिकुलर कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए. ओके, ये पॉलिसी इस फेवर में है, ये बोलती है कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए. ओके, तो दिस इज ऑल और अबाउट अवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. ओके, so we have completed all the sections related to our the science and technology and the syllabus of the मेंस एग्जामिनेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज. ठीक है, तो अभी जब नेक्स्ट क्लास हमारा होगा ना, तो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक्स. ठीक है, ऑब्वियसली कि वो टेक्नोलॉजी का पोर्शन नहीं होगा, है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी वी हैव कंप्लीटेड. तो वी हैव एक्चुअली स्टार्टेड द टॉपिक्स ऑफ द जनरल साइंस. ओके, so the upcoming next class will be considered as the general science class. ठीक है, तो उसमें जो भी चीज़ें आपकी रह गई हैं हम उसको एक एक करके कवर करते हुए चलेंगे. ठीक, तो फॉर द टुडे दिस इज कंप्लीटेड एंड थैंक यू सो मच एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. एंड तब तक के लिए सबको टाटा, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद.